discarded by retailers and consumers. See, for this very important to understand is inventory management. हर एक इंडस्ट्री, हर एक रिटेलर, होलसेलर, उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना जरूरी है. What do you mean by inventory management? Anyone? हाँ? मतलब उसको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ए रिटेलर, आपको पता है कि मेरे मार्केट में ये प्रोडक्ट्स दिन में 20 दिखते हैं, ठीक है ना. सो आप अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट्स देखेंगे कि मेरे पास कितने हैं, मुझे और कितने मंगवाने हैं. अब हमेशा एक चीज होता है, चाहे किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी दुकानदार के लिए, किसी भी जो स्टेक होल्डर है सप्लाई चेन में, उसको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना होता है, ही हैज टू कीप अ सेफ्टी स्टॉक. सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या है? देखिए, फॉर एग्जांपल, अब ऐसा है कि इफ देयर इज अ डिमांड इन द मार्केट फॉर ओनली 10 प्रोडक्ट्स, क्या आपको लग रहा है कि उसको खाली नहीं 10 प्रोडक्ट्स कहां पे लगने हैं? नहीं, उसको सेफ्टी स्टॉक भी रखना है, बिकॉज और कस्टमर आ सकते हैं. बिकॉज या सपोज नेस्ले है, नेस्ले को पता है मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स लेट अस से 1000 हमें दिन में बिकते हैं. क्या वो वही 1000 रखेगा? नहीं, वो एडिशनल 200 100 रखेगा. बिकॉज once your product is off the market, then your another company may take over. Because आप मार्केट जाते हैं नेस्ले का चॉकलेट ढूंढने, अगर आपको नहीं मिला then you can switch on to कैडबरी. सो मार्केट उसी टाइम मे बी आपको कैडबरी का उस टाइम ज्यादा अच्छा लगेगा, you will continue with that. So that is safety stock is very. So inventory management जो हमारा है, we don't have proper inventory management in our industry. That is actually the reason we are losing our products, or there is a more loss. So inventory management आपका proper होना चाहिए, ठीक है, proper stock होना चाहिए. Then you need to follow those rules. That is FIFO, FIFO, first in first out. Then FIFO, first expired first out. So we need to understand these terms. Then only we can prevent the food losses. Otherwise क्या warehouses में, godowns में हमारा product जाता है और वहां से क्या हो जाता है, हम ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई नहीं करते, हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं रखते, अल्टीमेटली वी आर लूजिंग आवर प्रोडक्ट्स, देयर इज अ लॉस और वेस्टेज. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लार्ज क्वांटिटीज ऑफ होलसम edible food are often unused or left over and discarded from household kitchens and eating establishments. So just like we are doing, ज्यादा बनाया हमने तो मार्केट में ऐसे हमने बाहर फेंक दिया, या कंज्यूम नहीं किया. Sometimes we bring, we require only 1 kg, and I believe that in home also we need to go for the proper inventory management. एक kg टमाटर चाहिए थे, 2 kg लाए, 1 kg कंज्यूम नहीं हुआ, after 3-4 days we have to discard it. So these are some of the reasons जो वहाँ पे. But now see, most important is if we see, most important is once we talk about the definition of if I'll be asked for the definition, so I say waste is not a waste unless it is wasted. It's a simple term. Waste is not a waste unless it is wasted. Unless it is wasted means if it is not wasted, then we can use it. So that is actually the concept कि we go for the valorization. वही तो रीजन है कि हम इसको वैलोराइज करते हैं, हम इसको यूटिलाइज करते हैं, यानी कि इसका पोटेंशियल है यूटिलाइज करने का किसी और चीज में. So that is the definition. Now, अगर हम देखेंगे लोग मर रहे, people are dying from hunger. ये सबको पता है, ठीक है. People are dying from hunger. अगर हम देखेंगे हमारा malnutrition problems बहुत सारी है यहाँ पे. Whether it is obesity or it is stunting, both are considered to be malnutrition problems. अगर हम एक आउटलुक देखें इसका ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, ये बहुत ही ग्रिम सिचुएशन है. इसमें देयर इज एन ओवरलैपिंग क्राइसिस यहाँ पे है, which facing the world are exposing the failures of food system. Because हमारा जो food system है, just like पहले दिन पवन अग्रवाल साहब ने बात की, food systems को transform करने की जरूरत है. We need to change the way we are doing the things, right? So then highlighting the vulnerability of populations around the world to hunger. So most important is we need to see कि कौन सी populations, कौन से areas हमारे vulnerable है, कौन से सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन हमारा वर्नरेबल है, उस पे हमें काम करने की जरूरत है. फॉर एग्जांपल, वी हैव चिल्ड्रन अंडर 5 years of age, we need to focus on them. We have women in the reproductive age, उसमें हमें देखना है. because अगर जो जनरेशन की बात करें, there are more than 50% of women in the reproductive age who are anemic. This is the current scenario, more than 50%. If we talk about the vitamin D deficiency, more than 80% of residents of Jammu and Kashmir are vitamin D deficient. So if we are here sitting here, so more than 80% of us would be having vitamin D deficiency. So these are the problems that we are facing. So hunger is actually now what is the definition of hunger?
How do you define hunger? How do you define hunger? No safe food to eat. Huh? Safe food खाने के लिए नहीं है. Is it safe? How do you define hunger? What is the time frame? For example, आपसे मैं simple example दूंगा. सुबह आपको लेट हुआ, आप घर से जल्दी निकले, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, दिन में आपको लंच करने के लिए टाइम नहीं मिला, और शाम को क्या आपका हम शुमार हंगर लिस्ट में कर सकते हैं? Can we include it? There is no food to eat. But for how much time? There must be a time frame. Unless it cause some pain or answer. Yes, that is true. So it is, इसका हम जो देखते हैं यूजुअली अगर आपको एक साल तक, इट इज नॉट ओनली कि आपको कंप्लीट खाना नहीं मिल रहा है, अगर आपको वो खाना मिल रहा है जो आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा है. फॉर एग्जांपल, यू नीड विटामिन डी दिस मच, यू नीड विटामिन ए दिस मच पर डे, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की जब हम बात करते हैं, अगर आपको वो एक साल तक नहीं मिला, जैसे लाइक इन्होंने कहा, फिर विजिबल होंगे आपकी वो बॉडी में, then it is, you know, we call it as hunger scenario. So अगर आप देखेंगे, that means जो malnutrition है, mal is something which is not proper. So malnutrition, so it can be both. जब when we ask people malnutrition, so वो हमेशा stunting की ओर लेते हैं, यानी कि वो पतला होना. But obesity is also a problem of malnutrition, right? So that means ये चीजें हमें समझने की जरूरत है. So this is the problem that we are grappling with. ये हमारे प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं. So अगर हम यहाँ पे देखें, हमारा ये जो यहाँ पे अगर आप देखोगे, so there is some global severity, एक hunger scale बनाई जाती है, उस पे हम countries को मापते हैं कि कहाँ पे, and this year our country is on 111th number. So we are at such a situation that we definitely need to work in this domain. मुझे आप एक चीज बताएं, इंडिया की बात करें, इंडिया या तो पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे है in most of the crops, प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, हम बड़ा चढ़ा के बोलते हैं. बट मुझे बताइए फिर प्रॉब्लम कहाँ है? वायर इज द प्रॉब्लम. अब करना क्या है? ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें कि हमारा पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो रिसीड होता जा रहा है. सो इसका मतलब प्रोडक्शन में अगर हम एक या दूसरे नंबर पे है, इसका मतलब प्रोडक्शन पे काम करने की जरूरत नहीं है. अब एक से हम कहाँ जाए? एक तो सबसे टॉप पोस्ट है. तो प्रॉब्लम जहाँ जो हमें समझनी है वो हमें देखना है. ठीक है, सो दैट मींस आपका प्रोडक्शन यहाँ पे अच्छा खासा है, या आपका जो लैंड है वो रिसीड होता जा रहा है. सो देयर इज नो स्कोप ऑफ इंप्रूविंग द प्रोडक्शन नाउ. सो दैट मींस अब हमें क्या है, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी में से बचाना है, उसी को सेव करना है, वही हमें अपने लोगों को देना है. दैट इज व्हाट वी कैन डू. There is no other way. For example, if you talk about last year only, there was a seminar here going on in this university. So there was professor from some foreign university. So she was working in urban food system department है उनका. For example, वहाँ पे क्या है, if highway is to be made, flyovers बनाने, कोई project बनाना है, सबसे पहले वो इस पे रिसर्च करते हैं कि अगर हम ये हाईवे बनाए तो हमारा कितना फूड प्रोडक्शन कम हो सकता है, कितने लोग हमें सफर हो जाएंगे. सो दैट इज हाउ दे आर वर्किंग. अब हम ऐसे ही बनाएंगे कहीं पे, सो दैट मींस हमें भी ये सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए. वी नीड टू वर्क ऑन दिस. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इफ यू कैन सी this is global hunger scenario. So if you can see our country, that's India. So that means हम यहाँ पे अगर आप देखोगे, so we are even after Bangladesh, our neighboring countries in this. So we need to definitely work in this domain. If you can see India हमारा इसमें ये आ रहा है. Now this is global report on food crisis 2023. See, if you can see here, 258 million people, that's 22.70% of the analyzed population in 58 countries or territories, faced high levels of acute food insecurity in 2022. 2022 में इतने लोगों ने food insecurity इतने लोगों के पास थी. Now what is food security? What is food security? Accessible to everyone at all times. So what are the dimensions of food security? Or we will be discussing that there are dimensions of food security. कब हम food security की बात करें, so this is actually the problem. आप देखिए, so 22.70% of the population in 58 countries, they are facing acute levels of food insecurity. So food insecurity is one more problem that we are facing. See, percentage increase अगर आप देखोगे December 2021 से 2022 तक in the price of staple foods.
स्टेपल फूड्स की प्राइसेस, सो प्राइस इज वन सच फैक्टर कि आपको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर आर सम पीपल हु आर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज होती है जिनके पास पैसे नहीं होंगे, बिकॉज फूड सिक्योरिटी का एक डायमेंशन ये भी है, फूड तो अवेलेबल है बट एक्सेस आपका नहीं है, मतलब हमारी कंट्री में फूड अवेलेबल है बिकॉज वी आर नंबर 1 नंबर 2, बट प्रॉब्लम है कि किसी के पास पैसे नहीं है, सो दैट्स वन डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। सो दैट मीन्स अगर हम स्टेपल फूड की यहाँ पे बात करें, सो दैट इज वन मोर प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। सो इसमें हमें इकोनॉमी जो है उसका हमें थोड़ा सा इश्यू रहता है, मतलब वी मस्ट हैव दैट परचेजिंग एबिलिटी, ठीक है। आप देखिए गोडाउन में भी आप देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस भी आएंगे, गोडाउन में ऐसे ही जो ग्रेन्स है वो सड़ गए, क्यों नहीं हम उनको फीड करा सकते, बिकॉज द प्रॉब्लम इज देयर आर सम पीपल जो माल न्यूट्रिशन है या जो हमारे लोअर तबके के होते हैं वो नहीं ले पाएंगे, सो बिकॉज दे डोंट हैव मनी। सो प्राइसेस इज वन सच फैक्टर दैट नीड्स टू बी सीन, जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। सो प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इन कंट्रीज अगर हम देखेंगे, सो 58 कंट्रीज, इसमें अगर आप देखोगे इसमें डिफरेंट कंट्रीज का ये डाटा है, सो देयर आर डिफरेंट रीजंस, there are different reasons now, like for example one is conflict or insecurity. Conflict is one of the reasons, like for example there was a Ukraine-Russia war, which crop got hit most, किस पे ज्यादा हो, wheat, because रशिया से wheat आपका आ जाता है, so wheat was actually जिस पे प्रॉब्लम हुई, ठीक है ना। अभी रिसेंटली इंडिया ने नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करने पे बैन लगाई थी, फिर उसके बाद जो कंट्रीज के साथ वादा किया था तो उन्होंने कहा कि हम कहां जाएंगे, देन दे लिफ्टेड द बैन, नॉन बासमती राइस को अलाउ किया, बासमती राइस पे स्टिल बैन है, ठीक है। सो यहाँ पे सो देयर आर डिफरेंट रीजंस। देन वेदर एक्सट्रीम्स, नाउ वेदर एक्सट्रीम्स ये हमारा एक विशियस साइकिल बनता है, हम वेस्ट जनरेट करते हैं, वेस्ट जनरेशन से 6% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिलीज होते हैं, 6% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन जब रिलीज होंगे तो वो एक्सट्रीम कंडीशंस लाएंगे, सो वो एक्सट्रीम कंडीशंस लाके आपके जो क्रॉप्स है वो आपके धीरे धीरे उनका प्रोडक्शन कम होगा, सो दैट मींस एक विशियस साइकिल बनता है। वेदर इज वन सच फैक्टर, सो दैट मीनिंग अगर हमें वेदर को अच्छे से रखना है, वेस्ट को प्रिवेंट करना है, या अगर ठीक है वेस्ट को प्रिवेंट करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात चली थी तो हमें उस पे काम करने की जरूरत है, ताकि हम जो ये वेदर प्रॉब्लम है, देन वी नीड टू डेवलप सच काइंड ऑफ वैरायटीज, ब्रीड उन वैरायटीज को करना है कि जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो जाए। फॉर एग्जांपल दिस ईयर आल्सो देयर वाज दिस ईयर 2023 को डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। So the reason was because if we see there are extreme weather conditions now, so they are considered to be climate resilient and they are also nutritious. So that was actually the reason कि so such kind of varieties need to be seen जिस पे हमें काम करने की जरूरत है, that's how we can feed our population. Then one reason is economic shocks. So there are some economic instabilities would be there in the country. So that would definitely lead to this hunger scenario. That would definitely lead us to this problem that we are facing right now. So that means food crisis जो है, this is actually the result of multiple drivers. There are no single factor involved. Rather there are multiple drivers involved in it, जिसकी वजह से हमारा जो food crisis आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी प्रोजेक्शन, जब हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा नेक्स्ट अगले साल क्या होने वाला है, अगले 5 साल, अगले 7 साल, अगले 10 साल में क्या होने वाला है, देन अकॉर्डिंगली हमारी पॉलिसीज बनेंगी, अकॉर्डिंगली हमें देखना है, ठीक है। सो इफ यू सी द प्रोजेक्शन 152 to 153.40 million people, that is 18% of the analyzed population in 38 countries or territories projected to face high levels of acute food insecurity in 2020. This is 2023 की बात जो चली, मतलब उसमें इतने सारे लोग फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। अब मुझे आप बताइए जो फूड इनसिक्योरिटी की जब प्रॉब्लम आएगी, सो अल्टीमेटली दिस विल टेक अस टू द सिचुएशन जहां पे हमारा हंगर सिनेरियो बढ़ेगा, जहां पे हमारा क्या आएगा, बिकॉज सी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स, देन यू कैन मेक द पॉलिसीज। फॉर पॉलिसी मेकिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रॉब्लम्स। इट इज नॉट हमारा रिसर्च जो है, फॉर एग्जांपल वी विल टेक एनी प्लांट, वी विल एक्सट्रैक्ट बायोएक्टिव कंपोनेंट, फिर वहां पे डाल दिया, हाँ वो एक्टिविटी दिखाई, बट वी नीड टू वर्क इन दिस डोमेन। हमें ये वी नीड ब्रॉडन अप आवर माइंड, तो प्रॉब्लम कहां पे है, कहां पे हम अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं ताकि हम अपने लोगों को बचाएं, बिकॉज दीस पीपल बिलोंग टू अस। अगर आज उनको है, कल हमारे साथ भी हो सकते हैं, कल किसी और के साथ। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीस प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग।
ओके, फूड इनसिक्योरिटी कब बोल सकते हैं फूड इनसिक्योरिटी? a person can be called a food insecure when they lack regular access to enough food, यानी कि regular access to enough food वो lack कर रहे हैं। पर जब ऐसा नहीं है, there is a person जो कहीं जाएगा वहां से खाना लेगा, जैसे food donations की बात चली थी, but regular access is important. Number one is regular access is very important. Okay, so to enough, one is to enough, so the food has to be enough, जो उसकी, because हर एक इंसान की अपनी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है, वो ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन देता है, उसमें अगर आप देखेंगे इस लास्ट ईयर उसमें भी इजाफा हुआ, बिकॉज इतनी डेफिशिएंसीज बढ़ी है हमारी बॉडी में। अब उन्होंने भी रिवाइज कर दिया, उन्होंने भी उसको अब ये बढ़ा दिया कि आपको अब इतने ज्यादा खाने हैं, बिकॉज वी आर डेफिशिएंट इन दैट। नंबर वन, इट मस्ट बी एनफ टू फीड दैट। नंबर टू, इट मस्ट बी सेफ, इट मस्ट बी सेफ एंड न्यूट्रिशियस, इट मस्ट बी न्यूट्रिशियस फूड फॉर नॉर्मल ग्रोथ, जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसको चाहिए, एंड एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। अब ऐसा नहीं है किसी को अगर खाना मिल रहा है अब वो बोलेगा मुझे अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा दीजिए। सो वो फूड इनसिक्योरिटी नहीं। फूड इनसिक्योरिटी जो आपका नॉर्मल ग्रोथ है उसको वो सफाइस करना चाहिए, अगर उसको नहीं मिल रहा है वो, दैट मींस वी कैन कॉल दैट पर्सन एज अ फूड इनसिक्योर, राइट। ड्यू टू, ये किसकी वजह से? ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड और लैक ऑफ रिसोर्सेज टू ऑब्टेन फूड। या तो उसके पास खाना नहीं होगा या उसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे उस खाना। फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज कैन बी मनी, that can be one resource. Food insecurity can be experienced at different levels of severity. So different levels of severity होती है जिसपे हम experiences को कर सकते हैं. So there is IPC or CH acute food insecurity phase description. So there are different phases. See, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 and phase 5. For example, phase 1 is none or minimum. Because हमें सबसे पहले अगर हमें देखना है कंट्री में प्रॉब्लम है कि नहीं, हमें कैटेगराइज करना है हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। नन का मतलब क्या है? हाउसहोल्ड्स आर एबल टू मीट एसेंशियल फूड, यानी कि जो हाउसहोल्ड्स है उनको एसेंशियल फूड मिल रहा है, आपको दिन का खाना चाहिए, चाय चाहिए, बेसिक नीड्स चाहिए, वो आपको मिल रही है। एंड नॉन फूड नीड्स, और आपकी जो नॉन फूड नीड्स है, बाकी खाने के साथ साथ और कोई भी जरूरियात होती है वो आपको मिल रही है, विदाउट एंगेजिंग इन ए टिपिकल एंड अनसस्टेनेबल स्ट्रेटजी, यानी कि आपको कोई कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कोई एटिपिकल या कोई अनसस्टेनेबल स्ट्रेटजी नहीं अपनानी पड़ेगी। बिकॉज समटाइम्स इट इज, अगर आप देखोगे इफ यू सी मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, वो कभी अगर किसी ने घर बना दिया तो उसका सारा इनकम वही की ओर जाता है, देन उसको कहीं ना कहीं फिर वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, किसी और चीज में कॉम्प्रोमाइज। इस साल गाड़ी लाई तो इस साल ये नहीं कर सकते, इस साल शादी हो गई बच्चे की तो इस साल ये नहीं कर सकते। सो वैसी कंडीशंस कोई नहीं आती, आपको खाना अपना सही से मिल रहा है, आपको नॉन फूड यूजेस आपकी फुलफिल हो रही है। टू एक्सेस फूड एंड इनकम, एक्शन रिक्वायर्ड टू बिल्ड रेजिलियंस एंड फॉर डिजास्टर रिस्क डिटेक्शन। अब एक्शन क्या है इसमें? एक्शन हमें ये लेना है कि रेजिलियंस या डिजास्टर रिस्क जो हमें डिटेक्शन करना है, बिकॉज अब मोस्टली हमें पता है हैजार्ड क्या है, हैजार्ड इज समथिंग व्हिच कैन कॉज अस हार्म। सो अब हमें पता है सही से तो चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना है या उस कंट्री को कुछ नहीं करना है। उस कंट्री को दिमाग में रखना है कि अगर ये वाला हैजार्ड आ सकता है, ड्रॉट आएगा, फ्लड्स आएंगे, कोई और चीज आएगा, सो दैट इज ए हैजार्ड। सो फ्लड इज ए हैजार्ड, ड्रॉट इज ए हैजार्ड। नाउ वी नीड टू गो फॉर द रिस्क इवैल्यूएशन। हमें ये देखना है कि अगर ये आएगा तो उसके साथ रिस्क इवैल्यूएशन, ये इसके साथ कितना रिस्क इन्वॉल्व है, अगर ये होगा तो क्या होगा, वो सारी चीजें आपको पहले ही वो स्ट्रेटजीज रखनी है। लाइक फॉर एग्जांपल इन फूड इंडस्ट्री वी हैव डिफरेंट हैजार्ड्स, है ना, हमारे पास फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। नाउ फोर्थ वन इज एलर्जी। एलर्जेंस आर कंस्टिट्यूट विद द फोर्थ हैजार्ड्स। अब हैजार्ड्स तो प्रेजेंट है, लेकिन अब हमें स्ट्रेटजीज अपनानी है। वो स्ट्रेटजी किस पे डिपेंड करेगा? वो स्ट्रेटजी करेगा डिपेंड कि इस हैजार्ड के साथ रिस्क कितना एसोसिएटेड है। बिकॉज़ हम इसमें क्या बनाते हैं, हम इसमें एक हैजार्ड मैट्रिक्स बनाते हैं। अगर ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है, अगर इससे ज्यादा डैमेज हो सकता है, ठीक है। मैं टाइम एंड अगेन एक ही एग्जांपल देता रहता हूं। इफ वी हैव एनी कार व्हिच इज मूविंग ऑन द नेशनल हाईवे 44, we have any Centro or we have any I-20 which is moving on National Highway 44, same car is moving on the SKUAST interior roads, मुझे बताइए हैजार्ड दोनों जगह है, वहां पे भी हिट हो सकता है बंदा, यहाँ पे भी हिट हो सकता है बंदा, हैजार्ड एक ही है ना, बट रिस्क कहाँ पे ज्यादा है? रिस्क इज मोर ऑन नेशनल हाईवे 44। सो दैट मींस आप कहाँ पे अपना डिफेंस प्लान स्ट्रॉन्ग रखेंगे, डिफेंस आपका स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली फूड इंडस्ट्रीज में करते हैं, अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें करना है, वी नीड टू सिलेक्ट दिस, नंबर 1। नंबर 2, फेज 2, then we shift to the phase 2, that is stressed। हमारा stressed phase है। Households have minimally adequate food consumption, यानी कि
minimally adequate food consumption है, उतना भी नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक है, but are unable to afford some essential non-food expenditures. लेकिन वो non-food expenditure कुछ fulfill नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो pension without engaging in stress coping strategies. अब यहाँ पे आएगा stress coping strategy, यानी कि उनको अगर नॉन फूड आइटम की ओर जाना है then they need to go for this stress, उनको आएगा, उनको वो एक अननेचुरल जो कंडीशन थी वो उससे वो आएगी, उसके साथ उसको they need to fight against that. Action required for disaster risk reduction and to protect the livelihoods. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे disaster risk reduction करना है और यहाँ पे हमें livelihoods को protect करना है. So this is phase 2. Then we will be shifting to phase 3. Phase 3 is crisis. जब crisis होगी, आप कहते हैं ना कभी न्यूज़ पे आएगी crisis, so it must click to your mind crisis का मतलब क्या है, कब हम, because there are government guidelines, अगर crisis आ गई तो हमारा ये defense plan होगा, अगर ये हो गया तो हमारा ये defense plan हो गया, so there are some guidelines. Households either number 1 have food consumption gaps, उनके पास food consumption gaps है, यानी कि food जिनको properly मिला, okay, that are reflected by high or above usual acute malnutrition. वो कैसे visible होगा, क्योंकि उनमें acute malnutrition आएंगे, so there can be problems. Are marginally able to meet minimum food needs, यानी कि बहुत marginally वो अपने food needs को meet कर पा रहे हैं, but only by depleting essential livelihood assets. यानी कि खाना तभी मिलेगा जब वो अपने livelihood assets को वो जरूरियात को वो साइड में रखेंगे, ठीक है, हाँ, और through crisis coping strategies. Then urgent action required would be to protect the livelihoods and reduce food consumption gaps. वहाँ पे क्या है, हमें प्रोटेक्ट करना है livelihoods और हमें reduce करना है consumption gaps. उसके बाद है phase 4. We will shift to the phase 4, that is emergency. Phase 4 is emergency. Households either have number 1 large food consumption gaps, यानी कि वहाँ पे small food consumption, अब यहाँ पे large food consumption gap 2 दिन 3 दिन 4 दिन आएगा, which are reflected in a very high acute malnutrition, यानी कि उनमें malnutrition problems बहुत सारी होंगी, excess mortality and excess mortality. Are able to mitigate large food consumption gaps. They are able to mitigate large food consumption gaps, but only by employing emergency livelihood strategies. यानी कि livelihood strategy जो उनकी emergency livelihood strategies उनको अपनानी पड़ेगी ताकि वो अपना खाना वहाँ पे आप वो उस requirement को meet कर सके, और asset liquidation यानी कि उनको अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी, उनको अपने assets बेचने पड़ेंगे. This is one more condition that can come up. Then phase 5 is catastrophe or famine, जिसको famine कहते हैं, catastrophe. कब आप बोलेंगे? Households have an extreme lack of food and or other basic needs even after full employment of coping strategies. यानी कि उन्होंने सारे जो उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने सब strategies लगाई, तब जाके भी वो इसको face करेंगे. So starvation would be there, death would be there, destitution and extremely critical acute malnutrition levels would be there. For famine classification, area needs to have extremely critical levels of acute malnutrition and mortality. यानी कि ये दो चीजें, आप किसी चीज को famine कब डिक्लेयर करेंगे, जब आपके ये दो चीजें होंगे, extreme malnutrition और this mortality would be there. So urgent action would be to revert or prevent widespread death and total collapse of livelihood. So that time it's an emergency. So that means किसकी वजह? These are the problems that we can face. So where from they do come? So we need to understand that, right? उसके बाद so FAO के measures है, there are some food and agriculture organization measures. Food insecurity using the food insecurity experience scale. There is a scale what we call as food insecurity experience scale, which is shown below. So food insecurity based on FIS, what does it mean? First we need to understand. Number 1 is uncertainty regarding ability to obtain food. मतलब you are very uncertain that you cannot obtain food. आपको खाना नहीं मिलेगा. You are very much uncertain. You are very much uncertain. Then compromising on food quality. तो क्या होता है? Then we go over the foods mild insecurity. So इसका मतलब जब हमें खाना मिलेगा, we are secure in terms of food security. Now we will be shifting to the mild insecurity.
जस्ट लाइक मैंने आपको फेजेस बताए, फेजेस 5 होते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग हमें इस पे देखना है। देन मॉडरेट फूड इनसिक्योरिटी। व्हाट इज मॉडरेट फूड इनसिक्योरिटी? दिस पर्सन हैज इनसफिशिएंट मनी। मॉडरेट फूड इनसिक्योरिटी का बोलेगा, उसके बाद इनसफिशिएंट मनी है और रिसोर्सेज फॉर अ हेल्दी डाइट। Number 2, uncertainty about the ability to obtain food. He is very much uncertain about obtaining the food. Now, probably skipped meals or run out of food occasionally. Then, severe food insecurity. उस बंदे को बोल सकते हैं, this person has run out of food. उसके पास खाना नहीं है, उसके पास gone on entire day without eating of times during the year. मतलब पूरे एक साथ, क्योंकि मैंने आपको कहा हंगर की डेफिनेशन में बहुत जरूरी है टाइम फ्रेम। सुबह हम खाना नहीं खाएंगे, शाम को हम सड़क पे नहीं निकल सकते कि मेरा आपने नाम हंगर लिस्ट में नहीं रखा है, आप घर में और मतलब ये ना availability और accessibility. Yes, that's one dimension. So that we need to understand food dimensions of food security. अब हम बोल सकते हैं, see, food security का मतलब है the media basically exists when all people have organized, हर एक को अपना खाना मिल रहा है, ठीक है? Have physical and economic access. There are two things. One is physical access. So you have physical access to the food. Second one is economic access. अब आपके पास पैसे हैं लेकिन खाना अगर नहीं होगा, if there can be famine or drought, पैसे है, बात क्या करोगे तुम पोषण? So that there are two dimensions. So access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs. क्योंकि मैंने कहा हमारे पास होती है RBA, recommended daily allowance, यानी कि 2200, 2000, 1800 किलो कैलोरीज के हिसाब से आपको दिन में कितना क्या चीज खाना है, वो सारा लिस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने दिया है। वो डाइटरी नीड्स आपको मीट होनी चाहिए, ठीक है? और देन देयर कम्स द कांसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड ऑल, बट वो अलग बात है, शीज आर मोर towards rice eaters, so we neglected some other foods, so we need to work on that. So if we see in that terms, then we are also food insecure. And food preferences for an active and healthy life. Okay, that's food security. Now there are four dimensions: availability, access, utilization, and stability. Availability का मतलब क्या है? What is written? Food availability means that sufficient quantities of appropriate and quality food. यानी कि हमारे पास sufficient quantity available है कि ये food available है, ठीक है? अब available है। अब मुझे पता है उसके बाद important क्या है? हम, क्योंकि मैंने पहले ही कहा India is either on number 1 or number 2 in production of most of the crops. So that means हमें problem नहीं है in terms of food. Food बहुत ज़्यादा available है। Problem क्या है? Then second thing comes access. अब access होना चाहिए, so people have adequate income or other resources. आपके पास adequate income या बाकी resources है ताकि आप इसको खरीद सके, आप इसको अपने family के लिए ला सके। Food domestically through home production, buying in local markets or as exchange, gifts, borrowing or as food aid. So this also comes. अगर आपको it's not only कि आपको पैसे नहीं है तो आपको just like food donation की बात चली थी, अगर food donation के थ्रू आप किसी तक खाना पहुंचा रहे हैं और उसको dietary needs उसके fulfill हो रहे, so we can also take him into the food security, इसमें जिस डोमेन में ला सकते हैं, ठीक है? या कोई आपको गिफ्ट देगा खाना, but गिफ्ट तो एक टाइम दे सकते हैं, पूरे साल, that is some different. Then there is utilization. People utilize food properly through food storing and processing practices. So we are, especially for winters, ठीक है? We need चावल और we need rice for during winters, तो हम इसको पहले ही store करके रखते हैं. So people utilize food properly through food storing and processing practices while have sufficient knowledge where they apply nutritional, health, sanitation, socio-cultural as well as spiritual parameters of food. So that means, but for this you need to have, you need to know all the things ताकि आप इसको properly store कर सकें, ये खराब ना हो जाए। अब कितनी चीजें आ गई, कितने dimensions आ गए? 3. Fourth dimension very important is stability. Stability of food refers to availability of adequate food at all the times, thus certain that access and utilization of appropriate food is not curtailed by any hindrance. यानी कि अब ये stability पे आएगा। ऐसा नहीं है कि हमें मार्च अप्रैल मई में खाना मिलेगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक नहीं मिलेगा, फिर नवंबर में फिर से आएगा। सो देयर मस्ट यू मस्ट हैव, बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि हम बॉडी को समझा सकते हैं कि आपको मार्च अप्रैल मई में खाना है, हमें तो एक महीने रोजा रखना होता है, तब बॉडी को समझाना बड़ा डिफिकल्ट होता है ना? ड्यूरिंग रमजान आपको ऐसे करना है, आपको शाम को और सुबह खाना है, दिन में कुछ नहीं खाना है। So yes, stability is very important. So stability of that particular food is very important.
people are dying from hunger, that we know. ये मैंने आपको समझा दिया. So 900 million hungry people on planet today. There are 900 million people. There are 900 million people this time who are hungry. This time. हम चाय पी रहे हैं अभी, सुबह भी पी, खाना भी खाएंगे, चाय और पिएंगे, उसके बाद शाम को और खाना खाएंगे. But there are 900 million people. So don't you think that we need to work for them? Ihr seid so, ihr müsst nicht bad. Ihr müsst schauen, schweren Kämpfen. So that means we need to work on this. Huge number of individuals are overfed. But this is not only problem. There are huge number of people who are overfed, जो ज़्यादा खाते हैं. It is especially a problem in US or obese. Malnutrition, that's one more dimension of malnutrition. According to existing agricultural production and trends in consumption, food production must be increased between 60 and 110% globally by 2050. जब हम बात करते हैं ना, because population तो बढ़ती है, इसके हिसाब से जब हम देखते हैं फूड प्रोडक्शन हमें बढ़ानी है between 60 and 110%. इतना हमें बढ़ाना है फूड प्रोडक्शन. बट मुझे एक चीज बताइए, कैसे बढ़ाएंगे प्रोडक्शन? हम तो पहले ही एक नंबर पे है या दूसरे नंबर पे है, कैसे बढ़ाएंगे? वो एक चीज है. दूसरा, हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है, आपका एग्रीकल्चरल लैंड कम हो रहा है, कहां पे उगाओगे? ठीक है. सो ये हमारे इश्यूज यहां पे आ रहे हैं. सो कैन वी इंक्रीज द प्रोडक्शन? इज इट फीजिबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन और कैन वी इंक्रीज द प्रोडक्शन? व्हाई? नंबर वन, देयर इज नो नीड. इफ वी आर एट नंबर वन, अब जाना कहां है? एक नंबर पे तो है, जाना कहां है? नंबर वन या नंबर टू पे. दूसरा, हमारा लैंड भी रिसीव हो रहा है. सो इसका मतलब, so yes or no? So it is no from your side, right? It's no from your side. So number one is fertile agricultural land is receding. That we know. जहाँ पे हमारी जहाँ पे हम चावल उगाते थे, वहाँ पे अब मकान हमने बनाए, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है. ठीक है. Owing to urbanization, because of urbanization हमारा हो रहा है. Urbanization change, number one, land use, number two, cropping patterns. These two things are very important that you are saying. So this in turn increasing unemployment in farm sector. So हमारे farm sector में भी unemployment जनरेट हो रही है. So causes higher prices of food. अब unemployment आ गई तो economic access उनका नहीं होगा. So आप देखिए vicious cycles आ रहा है. We need to understand all the dimensions. ठीक है. वो बात की बात है. फिर वो रिसर्च पर्पस के लिए हम सेब लाएंगे, सेब का पील निकालेंगे, उसमें फलानी बायोटिक कंपोनेंट है, उसको उठाएंगे, कैरेक्टराइज करेंगे, GCMS, MS, LCMS, फिर किसी जूस में डालेंगे, फिर पीने के लिए देंगे, फिर देखेंगे एंटी डायबिटिक हो गया, एंटी कैंसर हो गया, जो भी चीजें, वो बात की बात है. वी नीड टू वर्क ऑन दिस. पुअर क्वालिटी, इसकी वजह से पुअर क्वालिटी भी आ गई. बिकॉज आपका एग्रीकल्चरल जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है ना, इससे आपका जो क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस है वो कम हो रहा है. दैट्स डिक्रीजिंग. बिकॉज आप देखिए आपका अभी पेस्ट इन्फेस्टेशन भी अच्छा खासा हो रहा है, एंड यू आर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, एंड पेस्टिसाइड स्प्रेइंग हमारा तो मतलब आई बिलीव दिस इज द बिगेस्ट डिजास्टर दैट वी आर फेसिंग. यू सी डे बाय डे you hear about the cancer cases. इतने कैंसर केसेस बढ़ रहे. पुराने जमाने में तो साल में 1-2 सुनते थे, 3 सुनते थे, फिर 2-3 दिन हमें This problem is with the food system. I take it. I firmly believe it will be in the food system. Pesticides हम इतने छिड़क रहे हैं, we don't know where are we going. आप देखिए हमारा नया जो high-density approach system है. So I'm not against this, but we don't know how ये कैसे behave करेगा, because इसमें आपकी spacing कम होती है. So once spacing is less, so that means there is more humidity in between. Once there is more humidity, यहाँ से आपका temperature भी बढ़ रहा है global warming की वजह से, there will be more pest infestation. More pest infestation would demand more pesticides. आपकी स्प्रे आप साल भर स्प्रे करते रहते हैं. That is one problem. And second problem, अब ये तो ठीक है, चलो आपको छिड़कना था कहाँ पे? सेब पे, उसके पेड़ पे, एप्पल ट्री पे, लेकिन ये जाता कहीं और है. Because अगर आप देखेंगे ना, there is a drift. We call that as drift. हम स्प्रे जब करते हैं, so there is a drift. ठीक है. ये आपके आस पड़ोस में वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है उसमें जाएगी, आपका किचन गार्डन होगा उसमें जाएगा, आपका ट्यूबवेल भी वही है, जो बोरवेल है जिससे पानी वो भी वही है. आजकल और एक ट्रेंड है
हम अपने घर बनाते हैं, फिर साइड में हम लगाते हैं अपने ये एप्पल ट्रीज लगाते हैं, या कोई अपने एप्पल ऑर्चर्ड में ही मकान बनाता है, पच वनान इस फिजा। मगर द प्रॉब्लम इज वंस दे आर स्प्रेइंग, व्हाई डज गो, बिकॉज़ पेस्टिसाइड्स का बड़ा एक प्रॉब्लम है, इट रिमेन्स इन द सॉइल एज रेजिड्यू, इट गोज डीप डाउन इनटू द ग्राउंड वाटर व्हिच वी आर टेकिंग, and there has been no study. Recently we submitted a project on, we want to see the contamination of the groundwater. How we have done, we will correlate it with the areas wherein we are receiving more cancer cases. So these are the problems wherein we need to work. No one is working. अब मुझे बताएं what needs to be done when we talk in terms of pesticide spray. What needs to be done in order to minimize the drift. So we need to, अब पुराने ज़माने में वही मशीन हमारी थी, वही स्प्रेयर हम लगाते थे, उसका एडजस्टमेंट ये होता है। बट आप मुझे एक चीज़ बताइए, if you go to कुलगाम, if you go to Shupaya, you go to Baramulla, you have different altitudes. At different altitudes, you have different wind velocity. You are spraying it at, एक ही पर्सन उसको स्प्रे कर रहा है। So wherein there is more velocity, more drift. There is less velocity, less drift. Wherein there is temperature difference, there will be change in the drift. There is humidity difference, there will be change in the drift. So we definitely need to work on developing such kind of machines which will automatically sense the wind velocity or environmental conditions and automatically switch on to that particular mode so that we can spray it accordingly. There will be more जो canopy हमारी होती है उस पे जाए और drift ना हो जाए. These are the things that we need to see. Okay. So then scarcity of water. This is one biggest problem that we are facing and we will be facing. As has been said that this will be the next big reason for world war. Scarcity of water. एक तो scarcity of water, अब दूसरा है जो water available है वो भी हमारा safe नहीं है, मतलब उसमें बड़ी हमारी problem है. Then rural urban migration. There is rural urban migration. ठीक है, गांव में छोड़ना शहर बस, ठीक है, तो अब गांव में कौन बैठेगा, जमींदारी कौन करेगा और हमें कौन खिलाएगा, ठीक है, we need to, so that is, उसकी वजह से क्या आ जाती है, एमसीक्यू वाली imbalance आ जाती है सोसाइटी में. Increasing competition, so there is competition यहाँ से आपका बढ़ रहा है between, because competition क्यों बढ़ रहा है, आपका जो काम ही आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर कंपटीशन बढ़ेगा, आप उसको देंगे इसको देंगे, अल्टीमेटली वो उसको बोलेगा रिक्वायरमेंट होगी, एक टी की रिक्वायरमेंट होगी, वो उसको बोलेगा मैं आपको 100 रुपए दूंगा, दूसरा बोलेगा मैं आपको 200 रुपए. सो इन्फ्लेशन, once you have sufficient production, then price comes down, then you can feed your population. Then between residential and residential use of natural resources, so then there is again imbalance between the use of जो आप जिसपे आप अपने सेब उगाते थे, आप मकान बना रहे हो. So जो natural balance between residential and your जो natural resources है, उस पे आपको झगड़ा करना पड़ेगा, उसके साथ लड़ाई करके जीतेगा कौन वो देखना पड़ेगा. So these are the problems that we are facing. So these all lead to the food insecurity, एक vicious cycle बनता है. Then so we have only one option left. अब हमारे पास एक ही option है. What is that? Say no to food waste. Because production बढ़ा नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, एग्रीकल्चरल लैंड खत्म है, अब जो बचा है उसी को तो बचाना है. So इसलिए let's all take a pledge, हाँ? Okay. So that's to save food. We have to save food. So what will happen if food is wasted? अब क्या होगा, चलो ठीक, आपने ये बात सुनी और दिमाग से निकाली, but what will happen if food is wasted? Number one, there will be pollution, right? आप देखिए जहाँ पे dumping sites होती हैं वहाँ से गुजरना भी बड़ा मुश्किल होता है. There will be pollution. Not in terms of that, but आप देखिए इसका अपना एक biological oxygen demand होता है, COD होता है, तो काफी problems आ जाती है इसमें. So वो है. Then degradation of natural resources. So we are degrading our natural resources जिसकी वजह से imbalance of ecological network. Ecology is very important. See, previously आप देखिए आज से 10 साल 15 साल पहले हम सुनते थे global warming, but now we are experiencing it. Yeah, we are experiencing bad. अब देखिए आपने कश्मीर की बात करें. This time we used to have snowfall. The sheer amount of snow. We are missing that. आपके extreme winter हो जा रहे हैं, आपकी summer से extreme जा रहे हैं. AC की तो जरूरत नहीं पड़ती है हमारे यहाँ. अब ACs are very much required here in Kashmir also. So that we are facing. ऐसा नहीं है, मतलब आप तो बोल रहे हैं. So that's why we call it as sustainable development goals, which are sustainable. ऐसा नहीं हम एक दिन mitigation strategy करें दूसरे दिन वही problem पे आए. उस पे काम करने की जरूरत है. Then global climate change that we are facing, right?
So when discarding food, we also throw away millions of gallons of water used to grow plants and sustain them. क्योंकि हमने पहले बात कही कि हमारा scarcity of water होगा. So जब हम खाना फेंक रहे हैं, because there is water which has been involved in its growth. So हम पानी भी फेंक रहे हैं. Millions of gallons of water are फेंक रहे हैं. To produce loaf of bread, you need 100 buckets of water. एक bread piece जो खाते हैं ना, loaf of bread, 100 buckets of water are required for that. So once you throw it away, imagine you are, अब आपको बोला, उसके बाद अगर आपको बोले कि 10 buckets of water भी आप फेंको, will you be able to do that? सोचेंगे ना, हम क्यों पानी ज़ाया करेंगे? We need to understand this. We need to sensitize people. Whereas to rear one chicken breast, chicken breast, chicken leg, ठीक है? So you need 54 buckets of water. So जब खाना हम फेंक रहे हैं तो हम पानी भी उसके साथ फेंक रहे हैं, and ये हमारा प्रॉब्लम आ रहा है. This is why we are facing. Finally, water used for wasted food is calculated approximately as 45 trillion gallons. 45 trillion gallons of water जो ज़ाया हम कर रहे हैं. Then we are talking about कि हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है, कहाँ से लाएंगे आप बताएं? Because resources are limited. Population is increasing, demand is increasing, so that means हमें इसी में तो इसी को बचाना है, okay? Or in other words, 70% of all fresh water used is used for agriculture. Because agriculture के लिए जो 70% हमारा fresh water है, वो agriculture के लिए यूज होता है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात इसमें एक फार्मर की मेहनत होती है. That's most important. So this is what happens when food is wasted. Number one, methane is released. Methane is a greenhouse gas, right? Then land is wasted, ठीक है? Fuel is wasted. Biodiversity is harmed. So this is what we are facing. So food waste and carbon footprint. अब carbon footprint की बात आई. What is carbon footprint? It's actually a scale or measure कि कोई भी process कितना greenhouse gas release कर रहे हैं environment में, ठीक है? So carbon footprint or greenhouse gas footprint, we call it as greenhouse gas footprint also, serves as an indicator to compare the total amount of greenhouse gases emitted from an activity, product, company or country. Because now, see, we need to understand, sooner there will be now taxes which will be placed on each state, union territory or country. Jammu and Kashmir अगर ज़्यादा carbon footprint दिखाएगा, ज़्यादा carbon footprint होगा, हमें tax accordingly देना पड़ेगा. ये आगे जाकर हमारी जो इंडस्ट्री होगी उस पे मापा जाएगा. It will be measured how much greenhouse gas that industry is producing. Accordingly tax देना पड़ेगा. Even households पे लगेगा. So we definitely need to work it. So जैसे मैंने आपको बताया, because I was looking for an expert for life cycle assessment or carbon footprint evaluation, I am not getting. Because there is no expertise. अगर आप लोग इसमें जाएंगे, आप लोग इसकी काफी जगह पे इसकी ट्रेनिंग हो रही है, उसमें आप जाओ, वो ट्रेनिंग करो, कल को आपको यहाँ की इंडस्ट्रीज को ऑडिट कर सकते हैं, यहाँ की इंडस्ट्रीज को आप उनकी प्रोसेसेस को आप दैट एनर्जी एक्सर्जी और लाइफ साइकिल एसेसमेंट कार्बन फुटप्रिंट इवैल्यूएशन करके दे सकते हो. देन वो समझ के हम अपनी टेक्नोलॉजीज के डेवलप कर सकते हैं, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, ठीक है? ओके. So this is the symbol that you may have seen on most of the जो MNCs होती है, वो अपने products पे label पे रखते हैं, because they have already started working in this, ठीक है? इस तरह पर बे तो ही वही फिगरी क्या sure. Then we will again start thinking, okay ये बात थी, ठीक है? 6% of global greenhouse gas emissions come from food loss and food waste. So 6% यहाँ से आ रहा है. 6% is not a smaller number, it's a huge number, ठीक है? Emissions from food that is never eaten accounts for 6% of total emissions. So there is lost in supply chain, then there is consumer waste, then there is food eaten. Food eaten also contributes, but that is it. I call that as necessary evil. We definitely have to take a food and वो उसको नहीं, but at least जो यहाँ से आ रहा है उसको हम बचा सकते हैं. Food production is total food production की जब बात की, it is responsible for 26% of global greenhouse gas emissions. 25%, 26%, right? So is management of food waste or loss necessary now? So do you think it's necessary? How much necessary is this? क्योंकि ये मैं actually this I made intentionally just to sensitize you. See there are other technical terms. अब हम वो पेपर लाते हैं, उसमें वो ग्राफ्स दिखाते हैं, वो होता है, and these are the वो बाद की बातें वो पेपर पब्लिकेशन के लिए है.
So recent strategies for achieving sustainable food systems have called for reducing food loss and waste, है ना? तो इसी में फिर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए, जस्ट लाइक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट नंबर 12.30 है, दैट टेल्स अस दैट वी हैव टू रिड्यूस वेस्ट और फूड लॉस। और इसमें क्या है, by 2030, by or before 2030 we have to reduce our waste by 50% at least करना है। अब ऐसा नहीं है रातों रात हम करेंगे, मतलब शाम को सोएंगे सुबह कुछ वेस्ट नहीं होगा, it's not possible, it takes years, but somewhere we have to start. SDG 12 target 12.3 aims to reduce global food loss, waste at retailer and consumer levels by half and to reduce food losses along production and supply chain by 2030. ये हमारा इसमें गोल है, we have to follow it. So we are left with 6 years only. ठीक है? Valorization of lateral streams at on-farm and off-farm levels is critical. Now comes the valorization part. So जो हमारे lateral streams है, for example आपका process होता है, आपका रॉ मटेरियल जाता है, आपका प्रोडक्ट जाता है, आपके बाई प्रोडक्ट जाते हैं, आपका वेस्ट होता है। जो आपके साइड स्ट्रीम्स या लेटरल स्ट्रीम्स है, उनको वैल्यूराइज करने की जरूरत है, बिकॉज़ एज आई टोल्ड यू दैट वेस्ट इज नॉट ए वेस्ट अनलेस इट इज वेस्टेड। सो दैट अनलेस इट इज वेस्टेड गिव्स अस अ रे ऑफ होप कि वी कैन वैल्यूराइज इट, देयर इज सम पोटेंशियल टू वैल्यूराइज इट। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग दिस, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज रिसोर्स एफिशिएंसी। सो वी कैन इंक्रीज आवर रिसोर्स एफिशिएंसी, हो जाएगी ना, हमारे जो रिसोर्स है उनकी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला प्रोडक्शन बढ़ाने का हम सोच नहीं सकते, देयर इज नो नीड टू थिंक ओवर इट, जो है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना, दिस इज व्हाट वी नीड टू वर्क, लोअर्स कार्बन फुटप्रिंट व्हाइल आल्सो इंप्रूव्स इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। कार्बन फुटप्रिंट होगा लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। सर्कुलर इकोनॉमिक अप्रोच, अब जो आप पढ़ते आए तो ये आपको पता है, इन सर्कुलर इकोनॉमी वेस्ट इज मिनिमाइज्ड एंड रिसोर्स आर केप्ट इन यूज फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। So if you can keep them in use for as long as possible, that's resource efficiency. So efficient utilization of resources is very important. So this closed loop system is designed to be more environmentally and socially responsible than traditional linear economy model that we were following. So this is one such circular economy model. So most important, see, इसमें एक चीज अगर आप देखेंगे, then first thing is input of energy and materials. Number one, we need to see हम मटेरियल इस पे इनपुट, दो चीजें हैं ना इनपुट, आपको प्रोसेस करनी है, क्या चीजें इम्पोर्ट प्रोडक्ट बनाना है। वन इज द रॉ मटेरियल, दैट इज योर प्रोडक्ट फिजिकल रॉ मटेरियल, सेकंड वन इज द एनर्जी। हम हमेशा सोचते हैं इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, बट व्हाट अबाउट एनर्जी, बिकॉज हमारा एनर्जी कंजप्शन इतना ज्यादा हो रहा है, हमें एनर्जी पे भी काम करने की जरूरत है। आपको पावर जो है जनरेशन हो रही है, आपका पावर जनरेट होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, अब आपका यहाँ से पानी कम हो रहा है, कहाँ से लाओगे पावर? सो ये सारा विशेष साइकिल है, एक चीज होगा ना तो हम पूरा धीरे धीरे एक साइकिल बनता है और हम फिर इससे नहीं निकल पाएंगे। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कम आउट ऑफ दिस। देन प्रोडक्शन, ठीक है, इनपुट रॉ मटेरियल, उसके बाद प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल चावल उगाना है, आपका उसमें सीड्स जो होंगे दैट विल बी इनपुट, आपका पानी उसमें इनपुट होगा, फर्टिलाइजर्स इनपुट होगा, ठीक है, आपका जो दवाई आप लगाते हैं दैट इज एन इनपुट, देन एनर्जी जो आप उसमें लगती है, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन यूज, देन डिस्पोजल। आप देखिए डिस्पोजल पे रीयूज है, एट द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल यू कैन रीयूज इट, ठीक है। सो देन डिस्पोजल, देन देयर कैन बी वेस्ट लीकेज आल्सो, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट, बिकॉज नाउ एक्चुअली व्हाट वी आर फोकसिंग राइट नाउ इज वी नीड टू डेवलप ए जीरो वेस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एन आलमंड इंडस्ट्री, there is an almond industry, अब almond का हमारा क्या रहता है, बादाम जो is अंदरिम छो आसान, वो हम we take that and we forget about other things. Then there is your shell, there is your hull, there are leaves, there are twigs that are there. So better is to develop a complete zero waste processing system so that we can minimize this waste leakage. But waste leakage can be there, it's not possible कि 100% उसको बचे, but let us reduce it to a very, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे it goes straight away. So estimations, there are some estimations now. Food loss and waste estimations rely on defining what is meant by food loss. See, most important क्या है, अगर मैं आपको बोलूँगा कि ये चीज़ कितना है, but most important है उसकी definition हमें पता होनी चाहिए, because जब हम चीज़ों को define, suppose मैंने आपको पहले बोला food insecurity, अब food security के 4 dimension हैं, उस 4 dimensions आपके दिमाग में होंगे, then you can come with कि हमारे इसमें problem क्या है। So because हम उसी चीज़ को जो we can measure that what we can define. It's very important.
that thing which we cannot define can never be measured. मैं आपको बोलूँगा कोई चीज मेजर करो, आप बोलोगे क्या मेजर करना है, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, you must know what you are measuring, ठीक है? So food loss and waste estimations rely on making what's meant by effort. That is called that we call a definitional framework. अगर आप policies देखेंगे, if you see the policy documents, because last year only we made a policy, I was also member of that, export policy for Jammu and Kashmir, so that we can export our agricultural and horticultural based food products to different parts of the world. So वहाँ पे सबसे important जो policy आप देखेंगे या आप कोई law act देखेंगे, that's not got definitions लिखे, पहला chapter होता है definitions. Suppose अगर आप Food Safety Standards Authority India की book देखोगे, उस पे define हो, उस पे होगा define food क्या है, food substandard क्या है, injurious क्या है, because उसी context में आप करेंगे ना, नहीं तो हम अपनी interpretation करेंगे. और मेरे लिए इंजूरियस वो है जो उसकी आंख एक खराब करेगा, दूसरा बोलेगा मेरे लिए वो है जो उसका स्किन खराब करेगा. But injurious there must be some definition, so we need to have, that's called definitional framework is very important. And how FLW is measured. Number 2 is फिर FLW को कैसे measure करें, because then there are different ways. Recently last month only we were in a workshop on food loss only that was conducted by ICR. उसमें important सबसे discussion जो हुआ है कि how we can measure food loss, because there must be a uniform scale. मैं अभी बुशरा को मैं भेजूंगा कहीं पे कि आप ये food loss को measure करो, फिर महविश को भेजेंगे, फिर मारिया को भेजेंगे, ये अपने हिसाब से करेंगे, ये अपने हिसाब से, so there must be a uniform, so that we call as measurement framework. Because data availability is very important. Data available होगा तब policy बनेगी, उसी बेस पे बनेगी ना, इसीलिए कहीं-कहीं पे discrepancies आ जाती है डाटा में. हम डाटा दिखाते हैं वो बोलते नहीं ऐसा नहीं. So this is, so that means two things are very important. There continue to be many varied definitions and approach conceptualize. बहुत सारी definitions ऐसे आई है जो conceptualize करे FLW को. Resulting in an abundance of terms. तो बहुत सारी terms आएगी जब different dimensions से हम देखेंगे. That make it difficult to identify exactly what's being discussed, measured, and फिर उनको पता ही नहीं होता हम discuss क्या कर रहे हैं, measure क्या कर रहे हैं और address क्या कर रहे हैं. ठीक है ना? Inconsistencies in definitions can limit the comparability of FLW estimates, because this actually leads to inconsistency. Indian context में अपनी definition use करेंगे, USA वाले और एक करेंगे, फिर यूरोप वाले और करेंगे, फिर जब FAO रिपोर्ट बनाती है वहाँ पे discrepancies होती है, फिर हम जाएंगे नहीं जी आपने ये गलत किया है. Just like आप देखिए this year जब हमारा 111th रैंक आ गया ग्लोबल अर्बन इंडेक्स में, इंडिया ने डिफेंड किया, इंडिया ने कहा आपने जो ये तरीका यूज किया है फॉर मेजरमेंट दैट हैज बीन रॉन्ग. So that means we need to have a uniform scale. While similar terminologies is used across these estimates, there is food loss and food waste, food loss, food waste. The underlying definition of what counts as FLW are different, rendering the estimates incomparable. That's the problem that we are facing. One such difference, the SDG target 12.30 indicators do not consider food diverted to animal feed. देखिए क्या है, जब हम 12.30 देखते हैं उसमें definition FLW की देखते हैं, उसमें वो दिखाते ही नहीं है कि वो खाना जो डाइवर्ट हम करते हैं, क्योंकि पहले ही स्लाइड में मैंने डेफिनेशन बोली, that food which is diverted for non human consumption, suppose animal feed के लिए देंगे, वो उसको consider ही नहीं कर रहे FLW. अब आप बताइए क्या करें? These are the problems. Whereas the definition used in FAO, अब FAO 2011 में उन्होंने definition दिए, वो इसको भी food consider कर रहे हैं food loss. So these are, हमें अब क्या है तरीका इसका? You have to show, अगर आप कल रिपोर्ट दिखा रहे हो, आपको दिखाना है कि we have measured it as per the definition of FAO, we have measured it as per the definition of SDG, ताकि कोई discrepancy ना आए. ठीक है? तो टारगेट 12.3 और इंडिकेटर 12.3 वो वहां पे हमने दिखाया. So ये मैंने आपको बताया. Study reveals that households discard 11% of food, जो households पे हम 11% कर रहे हैं. This is what we can do at least. अगर इसका हम हाफ ही कर पाएंगे तो we can, because it is being said if we will reverse the food loss or waste, we can feed 22 billion people. ठीक है? और service और retailer outlets waste 5% and 2% only. Can you tell me the reason why there is more loss on the household than that at the retailer and consumer? Sorry, wholesale. I think it is more connected to the sensibility and the sense of responsibility. कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है. हम ज़्यादा लेते हैं, हमारा वो माइंड सेट है ज़्यादा लेने का, जितना हमें ज़रूरत ही नहीं है. एंड वो तो वेस्ट होगा ही. एंड हमें अवेयरनेस नहीं है कि जो हम वेस्ट करते हैं
वो करना भी है वेस्ट की नहीं, Well, we can utilize that for other purposes. I think मुझे लगता है कि checks and balances. Yes, yes. That's the main reason, checks and balances. ठीक है. So that's why we need to sensitize our own families. I would say start from the families and sensitize them how we can. 11% is too high. So you see, in comparison to 5%, 2% only. Because for retail services and retail outlets, it's money. They don't want to lose money. But for us, आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, फाइन दिया. So यहाँ पे अल्टीमेटली वो भी पैसा ही है, बट वहाँ पे हमें वो इकोनॉमी हम नहीं देखते हैं उस टाइम. Reducing food waste would cut greenhouse gas emissions, slow destruction of nature, and save money at a time of global recession. ये हमें बेनिफिट आ सकता है. 8 to 10% of total global greenhouse or associated food loss and waste ये बता दिया. Tackling challenge of food loss and sustainable food waste management is key to fulfilling Paris Agreement. जो हमारा Paris Agreement हुआ 2015 में, जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री भी बोल रही है कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनेंगे. ठीक है. So that will lead us to that. Annual generation of food waste is around 931 million tons. 931 million tons. Accounting for approximately 17% of total global food production. ये 2019 की बात है. 2021 में रिपोर्ट आ गया. Significance of food loss and waste indicates huge socio-economic opportunities underlying problems. Global market for food waste management is projected to increase from 34.60 to 45.60 billion US dollars by 2026. So अगर आप इसमें बिजनेस स्टार्ट करेंगे, so there is a huge scope. अब बिजनेस क्या आपको स्टार्ट करना है, वो आपने कुछ लेक्चर सुने और कुछ सुनने भी होंगे. But this is going to be really this is going to be जहाँ पे आप अच्छा खासा कमा सकते हैं, जहाँ पे हम और अपने एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं. हमारा एप्पल को में से how we are utilizing it, how we are utilizing it. चलो वो पैक्टिन एक है, और how much pectin is present in pomace? इसीलिए देखो वैलोराइजेशन की जब हम बात करते हैं, then there comes the safety aspects. आपने देखा होगा यूजुअली एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हम किससे करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से. और ऑर्गेनिक इथेनॉल किया, एसीटोन से किया, हेक्सेन से किया, फिर उसी को हमने लिया और कहाँ डाल दिया, फूड में. We need to see the safety aspects also. So जैसे एप्पल पोमेस की बात करते हैं, then as per report 13, 14 or 15% somewhere around it has a pectin. But I was studying, we talk of almond hull, that's containing 26%. We can extract 26%. It's huge number. So we can extract out of it. What about using apple pomace for the production of bioflavors and biocolors? Because अभी इसकी huge demand है. Because before this job I was food safety officer. जब हम मार्केट जाते थे तो most of the times हम वो कलरेंट्स पे, कुछ को मैंने बोला कलरेंट्स पे हम उनको बोलते थे कि ये कहीं यूज किए, सर रंग मजबूरी वगैरह करा यूज. तो उनका हमेशा एक ही क्वेश्चन आता था कि आप हमें अल्टरनेटिव दे दीजिए. सो व्हाई कांट वी डेवलप अल्टरनेटिव्स आउट ऑफ इट. एप्पल पोमे आप यूजिंग फर्मेंटेशन से आप कर सकते हैं, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, और देयर इज नाउ कांसेप्ट ऑफ प्रिसिशन फर्मेंटेशन. यू कैन आप यीस्ट को मॉडिफाई करके उसको जो भी मनपसंद प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं वो उसको बोलने के लिए आप बोल सकते हैं. You can make that. We can go for the precision fermentation. There is a lot more potential of using fermentation process for utilizing our wastes, especially apple pomace. ठीक है. Economic value of food loss and waste management needs to align with its socio-environmental benefits and greenhouse gas emissions. तो हमें इसको align करना पड़ेगा. So that means it calls for coherent collaboration. अब काम किसका है? It calls for coherent collaboration among food producers. जो food producers किस को कौन stakeholder बनेगा? एक तो food producer बनेगा, consumer बनेगा, government बनेगा, media, waste companies, campaigners and non-governmental organizations in defining a clear roadmap to mitigate problem and associated socio-economic. So that means all are involved because it is impacting us all. ये एक ही problem नहीं. अगर इंडस्ट्री वाले को लॉस हो रहा है, ये खाली उसका लॉस नहीं हो रहा है, वो आपके माहौल में वो ये एनवायरनमेंट में फेंकता है उसको, आपका एनवायरनमेंट खराब होता है, आप सफर होते हैं. सो फूड, ठीक है. सो कटिंग फूड वेस्ट इज अ डिलीशियस वे ऑफ सेविंग मनी. इट्स अ डिलीशियस वे ऑफ सेविंग मनी. Okay, helping to feed the world and protect the planet. So that's all for this. So, any question? Yes, sir. Yes. सर, अगर आपको
आपको याद होगा पिछले साल का वर्ल्ड फूड डे, तो आपने मुझे एक टास्क दिया था क्लिप्स कलेक्ट करना एंड वो असिस्टेंट फूड कमिश्नर से बात करना। इवन मैंने आपको वो क्लिप सेंड भी करी थी। तो आपकी प्रेजेंटेशन में एक पॉइंट था 900 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम हंगर, लाइक उनके पास खाना नहीं है खाने के लिए। तो पिछले साल इवन आपने उससे पहले भी ये चीज़ करी थी कि ऐसा करेंगे कि हम कैंपस से स्टार्ट करेंगे, लाइक फ्रॉम स्कॉस्ट ISSUIES KU, जिससे हम लोग एटलीस्ट अपने एरिया का देख सकते हैं। बट उस टाइम क्या हुआ कि 8-10 दिन डिवीजन से कोई जवाब नहीं आया। इवन मैंने वो क्लिप्स आपको सेंड भी करी थी एंड आपने देखा था हालात क्या है। वो काफ़ी मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टनेड सीन्स थे वहाँ पे। तो लाइक आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, आपने भी उस रिलेटेड कुछ किया नहीं? Since we are the government, I would call myself as a government servant. So there are some rules and regulations. So because of that, for some reasons, I couldn't carry that forward. But yes, I said they should not stop us. They should definitely not stop us. If we can make a good video out of it, if we can make a good video out of it, we can circulate it. There is no issue. So it's not only about like out of humanity, like we are food technologists. And Yes, हमारा that is उसका मेरा purposely मैंने आपको बोला था because आप खुद गए. Actually, I gave her a task last year to go to different areas, जो slum areas वगैरह है, आप वहाँ पे condition देखो. जब इसने बात की तो कितना sensitize आप हुए. That was actually the reason उसका. So if we can make good video out of it, we can circulate that. उसमें issue नहीं है. सर्कुलेट करने की बात क्या, लाइक हमें बहुत टाइम हो गया है फूड टेक्नोलॉजी पढ़ते पढ़ते, फ्रॉम BTech मास्टर्स ना PhD, बट हम ये हमारा ये SDG जो है पहले और दूसरे नंबर पे नो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर, बट ये सारा पेपर्स पे है ना। That's what I'm telling you. See, we should never be. For example, if I'm here, मैं बोलूँगा कि मेरी सरकारी नौकरी है तो मुझे मेरी तनख्वाह आ रही है, मैं पढ़ाता हूँ वो चीज़। I need to see the problems in and around my environment and act accordingly. तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम लोग सेंसिटाइज कर सकते हैं। एटलीस्ट चलो अगर यहाँ पे 25 participants हैं, so after 25 participants, if only 2 or 3 people would act on it, so at least we can make a change. So this is how things go on. We keep on trying and trying, and we will ensure keep on running. And that was actually the reason why I selected this topic. Let me tell you frankly, when I submitted this project, I was asked that इसमें क्या entrepreneurship होगा, because mostly इसमें entrepreneurship skills लेंगे. Then I defended. मैंने कहा इसमें हो सकता है ऐसे skills वगैरह. I defended this proposal. So that was actually मेरा purpose यही था कि इसको हम कैसे करें. अब इसमें लालच हम लोगों को क्या दे सकते हैं, लालच हम लोगों को दे सकते हैं that we can earn cash out of cash. If we can किसी को पैसे की लालच शायद इसी वजह से हम इसको मैनेज कर रहे हैं. This is कहीं ना किसी तरीके, जैसा मैंने आपको बोला पेस्टिसाइड्स का, so हमें ही काम करना है इस पे. It's we people who have to work on this. It's not कि मेरी thesis सबमिट की मेरी हो गई थी हमारा assistant professor लगा वो चीज़, और ये चीज़ों पे हमें वर्क करना है. Anyone else? So this is all for today. But मुझे 2-3 चीजें इस स्लाइड में आपको आपके साथ डिस्कस कर लिए, because this is actually a problem जिसकी वजह से हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हमारे लॉसेस हो रहे हैं. तो देयर इज जो हमारा जो सप्लाई चेन है उसमें कुछ इश्यूज हमारे आ रहे हैं. अगर आप देखोगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे जस्ट देयर इज एक्चुअली जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं, देयर इज वन इशू इन सप्लाई चेन, दैट इज हमारा सप्लाई चेन में एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन. वी हैव एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इन सप्लाई चेन. सी मैंने आपको बोला सप्लाई चेन में आप फार्मर सपोज सोपोर में बैठा है, बारामूला में बैठा है, कुलगाम में बैठा है, ये शुपाया में बैठा है, एप्पल फार्मर. फिर वहां पे होता है कंसोलिडेटर वी कॉल एज, इसको व्यापारी कहते हैं, सुना ना व्यापारी. अब क्या होता है, देयर इज अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. अब फार्मर अपना माल किसको देता है, कंसोलिडेटर को. कंसोलिडेटर लेता है होलसेलर मंडी,
मंडी पे होलसेलर, होलसेलर पे रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, ये एक बड़ी चेन बनती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की, इंडिया जैसे मैंने आपको पहले बोला कि वी आर इधर ऑन नंबर 1 और नंबर 2। आप मुझे बताइए सबसे सस्ता खाना कहाँ पे होना चाहिए था? देखा गया है कि ऐसी कंट्रीज में सब महंगा खाना है कंपेयर टू अदर कंट्री जहां पे कम उनको प्रोडक्शन है। रीजन ये है, देखो क्या होता है, ये फार्मर बेचारा जो है इसको इंफॉर्मेशन नहीं होती है। दो चीजों का इंफॉर्मेशन होता है, एक फ्लो होता है, देयर आर टू थिंग्स व्हिच फ्लो इन सप्लाई चेन, वन इज इंफॉर्मेशन, वन इज सेकंड वन इज प्रोडक्ट, थ्री थिंग्स, इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट एंड मनी, पैसे। इंफॉर्मेशन जो है इट इज अ बाई डायरेक्शन, यानी कि फार्मर से जाएगा कंसोलिडेटर, उससे होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर से वापस। होना चाहिए ना दो तरीके, प्रोडक्ट जाता है फार्मर से कंज्यूमर, इट्स ए यूनिडायरेक्शनल। पैसे कहां से आते हैं? रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या होता है, इस फार्मर बेचारे को पता नहीं होता है कि मेरी रेट वहां पे क्या है। तमिश वनान बापर सिहज मे प्रोडक्ट है बदिमे 200 रुपये पेटी वन चाइन मूजूब कर वन ये, दिस इज हाउ यू नो दे डू इट। फिर जबकि एक्चुअल रेट मार्केट में होती है 1100-1200। अल्टीमेटली क्या होता है कि देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल उसने 10 रुपए में उससे कोई चीज ली, कंसोलिडेटर अपने 2 रुपए जोड़ेगा, मंडी वाला अपना 3 रुपए जोड़ेगा, होलसेलर अपने 2 रुपए जोड़ेगा और एक अपने और 2 रुपए जोड़ेगा, अल्टीमेटली ये 20 तक पहुंचता है। हु पेज मोर, फिर पैसे किसको देने होते हैं? इट्स वी पीपल हु हैव टू पे। वो एक चीज है। दूसरा इसमें एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन। एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन क्या होती है? जैसे मैंने आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट से ही बोला, जब मार्केट में अगर डिमांड सपोज दैट इज 20 प्रोडक्ट्स की डिमांड है मार्केट में, तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप किसके पास, आप दुकानदार के पास जाते हैं ना, आप दुकानदार के पास ही जाएंगे, उसको बोलेंगे आई नीड 20 प्रोडक्ट्स ऑफ दिस। सो उसको पता है कि मेरे मार्केट में 20 प्रोडक्ट्स की डिमांड है। वो होलसेलर को बोलता है, जब वो किसे मांगेगा? होलसेलर से। होलसेलर से कितना मांगेगा? उससे ज्यादा। वो एग्जैक्टली उतना नहीं मांगा क्योंकि उसको सेफ स्टॉक भी रखना है, और होलसेलर उसको बोलता है कि नहीं, मैं आप 20 के बजाय 40 लो, मैं आपको डिस्काउंट देता हूं। और फिर होलसेलर कहां से लाता है? मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर उसको बोलता है नहीं, आप 60 ले लो मुझसे, या मैं आप बल्क में डिमांड हो तब बनाऊंगा, क्योंकि उनका इंडस्ट्रियल कैपेसिटी होता है, जो खर्चा मुझे 10 का लगेगा वो मुझे 1000 का लगेगा। सो वो ज्यादा बनाते हैं, जबकि हम देखते हैं एक्चुअल डिमांड मार्केट में 15 ही होती है, 10 ही होती है। सो दिस इज एक्चुअली लीडिंग अस टू द लॉस। सो ये सप्लाई चेन जो हमारी है ना, वी हैव टू रेगुलेट, बिकॉज़ इंडियन सप्लाई चेन इज कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट सप्लाई चेन इन द वर्ल्ड। देयर आर 5 to 7 प्लेयर्स इन बिटवीन फार्मर एंड कंज्यूमर। अब इसी हाउस में गवर्नमेंट ने किया था जो फार्मर्स 2020 बिल आई थी, उसमें उन्होंने डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ करेगा, रादर देयर मे बी सम अदर प्रॉब्लम्स, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, there are some political reasons also, there are some other reasons, I don't want to go into that, but उसका ये था कि एटलीस्ट जो कंपनी वाला है वो फार्मर के साथ डायरेक्ट टाइप करे। और दूसरा स्पेशली फॉर द प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल देयर आर पोटैटो कंपनीज, चिप्स मेकिंग कंपनी, लेज वगैरह जो बनाती है, वो डायरेक्टली उनको कोई पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ पोटैटो चाहिए which are low in sugar, otherwise there will be non-enzymatic protein, there will be wrong. So chips वाला variety is usually meant for that. तो डायरेक्टली वो फार्मर के पास जा सकते हैं, उसको बोल सकते हैं आप मुझे ये वैरायटी करके दो, एटलीस्ट फार्मर को कहीं ना कहीं वो सपोर्ट मिलता है। बट फॉर एग्जांपल दूसरा ये है कि आईटीसी से एमएनसी, आईटीसी रिसेंटली केम इन द फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दम आलू का बड़ा चलता है, दम आलू, दे टेक लॉट ऑफ दम आलू एंड देयर इज अ गुड मार्केट फॉर दैट। अब फॉर दम आलू यू नीड टू हार्वेस्ट योर पोटैटोज एट अर्ली स्टेज। आपको बिल्कुल फुली मैच्योर स्टेज पे नहीं करना, आपको जब वो छोटे-छोटे थे वो स्टेज पे आपको करने हैं। सो वो कैसे पता चलेगा? वो तब होगा जब आप फार्मर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। सो दैट मींस सप्लाई चेन में हमारे काफी इश्यूज हैं जिन पे हमें काम करने की बहुत जरूरत है। सो दिस इज वन सच प्रॉब्लम दैट वी आर टेकिंग। फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन में हमारा ये है लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्टेशन, वी डोंट हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। और फॉर एग्जांपल मैं उनको पढ़ाता हूँ पीएचडी वालों को फूड सेफ्टी एंड स्टोरेज इंजीनियरिंग, हमारे जो स्टोरेज स्ट्रक्चर्स है हमें उनका डिजाइन समझा नहीं है, we don't know the design of these systems। आप मुझे एक चीज बताइए, हमारे कोल्ड स्टोरेज या कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज है अभी, ठीक है, चल रहे हैं, बट वी आर नॉट मीटिंग, we need it for 20 lakh metric ton, this time only it is only for 2 lakh metric ton, we are deficit with the 18 lakh metric tons।
अब मुझे इसके लिए आपको नहीं लग रहा है कि वी कैन मेक स्मॉल फार्म ओरिएंटेड फॉर लेस जो कैपेसिटी होंगे वो हम सोलर ऑपरेटेड, हमारा सस्टेनेबल एनर्जी भी होगा। सो ये चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। वी नीड टू अंडरस्टैंड एज फूड टेक्नोलॉजिस्ट्स, नाउ लेट्स कम आउट ऑफ द पॉलिसीज एंड लेट्स कम व्हाट एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट वी हैव टू डू। हम फॉर एग्जांपल हमें यही जो स्मॉलर स्टोरेज कैपेसिटी जो सोलर ऑपरेटेड होंगे वो हम फार्मर को इंस्टॉल करके देंगे, ऑन फार्म स्टोरेज जिसको हम कहते हैं वो कर सकते हैं। बट फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आपको वेंटिलेशन कितना चाहिए, आपको फ्लो कितना रखना है, आपके डिजाइनिंग स्ट्रक्चर सीलो जो बनते हैं उसमें प्रेशर कितना रखना है, हाउ मच प्रेशर इट कैन विथस्टैंड। सो ऑल ऑफ द थिंग्स वी नीड टू एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब मुझे पता है हमने एप्पल इंडस्ट्री के लिए क्या किया, हमारी एप्पल इंडस्ट्री इतनी सफर कर रही है अब बिकॉज हमारा जो हाईवे है ये ऑन एंड ऑफ बंद रहता है, इसमें प्रॉब्लम्स है हमारी रोड कनेक्टिविटी की काफी प्रॉब्लम्स है एंड आवर फार्मर्स सफर। व्हाट हैव वी डन फॉर देम? What have we done for reducing the post? Because this is actually leading us to the post-harvest losses. 3 days before, I was talking to my friend. He was doing BTech for technology with me from ISSUIES only. Then he has his own CA store this time at Lysipora, earning about I would say 10-20 times better than me. So most important, I believe better is to go for the entrepreneurship. What is my biggest regret in my life is not to join family business rather coming in the government job. To be very frank enough, you might be thinking चलो job है इनकी तो शायद, but उसमें आप दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं, वो उसमें important। So वो मुझे एक चीज बता रहा था कि they don't have उनकी सेंसर जो है अंदर लगे हैं because आपका ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना है, आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना है, आपके ऑक्सीजन और गैसियस रेजिम्स कंट्रोल करना है। वो बोल रहा था हमारे पास जो अभी सेंसर्स अवेलेबल है वो प्रॉपर्ली मॉनिटर नहीं कर, वो हमें बड़ा धोखा देते हैं और फिर उससे हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। He was insisting on me to work on the sensors. So ये मैं आपको थोड़ा I'm igniting your mind wherein you can work. So वो एक डोमेन है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। Then he was he told me that why can't we have organic base that vaccine. हम वैक्सीन कर देना एप्पल से, so why can't we have organic based apples so that we can produce it as an organic way or the natural source. That's one more domain why we can. So overall if you see the supply chain is actually an issue to us. So we need to work on supply chains. इसमें हमें देखना है हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और कहाँ पे हम इंटरवेंशन कर सकते हैं so that we can reduce this waste to a very greater extent. ठीक है? So that's all for today. Anyone having question? ठीक है? Okay.